Hi, welcome to Bada class. Today, first we'll do the test of French Revolution. So, Parth, we have already done this chapter. Its test is easy, not very difficult. So, are you ready for it? Then we'll go on to the next chapter. Okay, Socialism and Russian Revolution. But first, the questions. Okay, from the previous class. And I don't know anything. You know everything. Okay, so you have to help me with the answers. Which of the following was not an estate in pre-revolutionary France? Which was not an estate? Clergy, nobility, merchants, peasants. Which was not. Okay. Which is नहीं पूछ रहा, which was not पूछ रहा है. Focus on the word not. क्या नहीं थी estate? Clergy थी, nobility थी, okay, merchants. I told you I don't know anything, only you know. So let's just check it. Merchants, is it correct or not? Merchants, it's correct. So which were the three estates? Common people, peasants, right? Yeah, commoners. Merchants were part of the third estate, not a separate estate. The estate system divided society into three groups only. ठीक है? Merchants third estate में आते थे, but ऐसे separate part नहीं थे. ठीक है? Peasants फिर भी हम third estate में ज़्यादा बोल सकते हैं, या commoners third estate को बोल सकते हैं. So for that, okay. Next, who was the king of France during the outbreak of the French Revolution? Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Right. Good. Yeah, Louis XVI. उनका पीरियड क्या था? रीन पीरियड. Ruled from 1774 to 1792. Okay. And he was executed in which year? We have discussed this. Right. He and his wife both were executed in the same year. Queen कौन थी? Austria. Antoinette. Okay. What was the tennis court oath? Was it about a sports competition during the revolution, a pledge taken by the third estates, a royal decree by King Louis XVI, or a law banning public gatherings? What was it? Right. Good. And the date was? Right. And Bastile's की क्या date थी? 14th is right. Right. And General Estates की क्या date थी? Right. So it chronology, June 20, 1789 pledge, vowed not to separate until France had a constitution. क्या पर्पस था कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता. लोकेशन, इंडोर टेनिस कोर्ट एट वर्सेल्स. मेजर एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट मोनार्की. ठीक है, वन ऑफ द मेजर एक्ट्स. लेकिन बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हम किससे मार्क करते हैं? कौन से इवेंट से? राइट. Which philosophical movement greatly influenced revolutionary ideas? Romanticism, Enlightenment, Existentialism, Surrealism. What was Romanticism about? Have we done it? Romanticism? थोड़ा सा भी जो भी आपको याद हो वो बता दो. रोमांटिसिज्म का ऑस्ट्रिया की क्वीन से कुछ रिलेशन नहीं है. रोमांटिसिज्म का मतलब है, मतलब आप अपने देश के प्रति या नेशन के प्रति, और किस तरीके से रोमांटिक का मतलब प्यार, सो किस तरीके से अपने देश के प्रति प्यार फील कर सकते हो, और कौन से वेज हैं? थ्रू म्यूजिक,
थ्रू सॉन्ग्स, जैसे जन गण मन हो गया, वंदे मातरम हो गया, सारे जहां से अच्छा हो गया, राइट। ऐसे ही कुछ सिंबल्स हो गए, हमारे केस में हमारा ट्राई कलर फ्लैग है ना, उनके केस में फ्रांस का फ्लैग, भारत माता की फिगर से हम इंडिया को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ऐसे ही उनका था मर्सेल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी, बट आई थिंक इट वाज समथिंग मर्सेल्स, ऐसा कुछ ही, मर्सेल्स उनका नेशनल एंथम भी था फ्रांस का। सो फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, क्लोथ्स या लैंग्वेज, उन सब से आप अपने देश के प्रति प्यार फील कर रहे हो, सो रोमांटिसिज्म उस सेंस में, ओके, इट हैड नथिंग टू डू विद द क्वीन, ओके, वो तो कॉज था, ये रेवोल्यूशन होने का एक कॉज था कि क्वीन एंटोइनेट भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी, राइट, खर्चीली थी, नोबिलिटी इन जनरल ऑल्सो वर वेरी स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्चीले थे, ओके। मूविंग ऑन, यू सेड एनलाइटनमेंट, सो लेट्स जस्ट चेक इट, एनलाइटनमेंट क्या था? राइट, एंड किस उससे वो एजुकेटेड हुए, मतलब व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम और व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द industrialization, right? Yeah, so core ideas emphasize reason, science and individualism. Enlightenment में वो किस चीज पे फोकस करते थे कि जो भी डिसीजन लेने रीजन के बेसिस पे, कि if you are saying do this or not to do this, you need to give me a reason. If I ask you part switch on the video, so I give you a reason so that the class is interactive, है ना, so there should be a reason to do things. ऐसे ही नहीं बस ऐसे ही बोल दिया, सो वो साइंस बेसिस पे होना चाहिए और इंडिविजुअलिज्म को वैल्यू करना चाहिए, है ना, कि मेरा खुद का क्या चॉइस है उसको भी लिया जाए, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑल दोस थिंग्स। की फिलोसफर्स थे वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क। वॉल्टेयर ने चर्च को क्रिटिसाइज किया, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी, मॉन्टेस्क ने क्या बात करी? दैट वाज द नेम ऑफ हिज बुक, सेपरेशन ऑफ पावर्स, LEJ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, क्वेश्चन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड चर्च अथॉरिटी। और एक और कौन से थे थिंकर? राइट। What percentage of French population belong to the third estate? 25%, 50%, 75, 97. Okay, right, 97. सेकेंड एस्टेट सिर्फ 2% थी और क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट जो थी वो 1% थी, ओके। What historic building was stormed on 14th of July 1789? Bastille prison, right? Yeah, now celebrated as Bastille Day in France. Symbol, Bastille represented royal authority and oppression. Purpose, revolutionaries sought weapons and ammunitions ki hum le lenge. Marked beginning of violent revolution and hence it is also considered as a beginning of the French Revolution. Which economic factor contributed to the French Revolution? I'll read it to you, okay? Which economic factor contributed to the French Revolution? A, trade surplus, B, government debt, C, strong agricultural output, D, gold discovery. What do you understand by the question? That's written. I need to know what do you understand by it. वो तो आपने read कर दिया मेरे लिए. I need to know आपको इसे समझ में क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे. फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसकी वजह से हुआ, क्यों जरूरत पड़ी थी, कॉजेस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? So what is your answer out of these? Gold discovery, government debt, trade surplus, strong agricultural output. Right. Yeah. So you get to the answers. Question को समझने की जरूरत है, then you will understand it, right? क्योंकि बैंक करप्सी थी, वो
अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना रोल दे रहे थे, तो ऑब्वियसली उनकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, लोन ले रहे थे, लोन का पैसा और इंटरेस्ट दे रहे थे, तो अपने पास पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने जनरल स्टेट्स की असेंबली बुलाई टू इंक्रीज द टैक्सेस। और लोग, पीपल वो अगेंस्ट इट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी, ऊपर से आप टैक्सेस और बढ़ा रहे हो, तो लोगों ने रिवोल्ट किया। सो गवर्नमेंट डेट प्लेड अ मेजर रोल or a contributing factor in influencing French Revolution, beginning of the French Revolution, bankruptcy, wars, failed reforms, bread crisis. Okay. What important document was adopted on August 26, 1789? The French Constitution, the Declaration of Independence, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the Napoleonic Code. Right. It was a document defining individual and collective rights based on Enlightenment ideas, similar to American Declaration, established equality and liberty, reason, science, individualism, उस बारे में बात करते हुए. Yes, and date was? Right. Who famously said, "Let them eat cake," when told peasants had no bread? मैरी एंटोइनेट, किंग लुई 16, रॉबस्पियर, नेपोलियन बोनापार्ट. किसने ये चीज बोली थी? लेट देम हैव केक, लेट देम ईट केक. यहाँ पे देम कौन है? राइट, देम इज पेजेंट्स. आपने देम के लिए पेजेंट्स बोला है? या राइट, लेट देम ईट केक में तो वो थर्ड एस्टेट, जिसने भी ये बोला है वो थर्ड एस्टेट को ही रेफर कर रहे हैं कि थर्ड एस्टेट को केक खाने दो. लेट देम ईट केक, पेजेंट्स. राइट. बोला किसने है? मैरी एंटोइनेट, किंग लुई 16, रॉबस्पियर, नेपोलियन बोनापार्ट. I think it should be Marie Antoinette, but let's see if you are right. Marie Antoinette. Okay, she was the queen, allegedly made statement. Debate historians questions if she actually said it. Not relevant for us. Represents basically statement से ये पता लग रहा है कि एरिस्टोक्रेसी जो फर्स्ट या सेकंड एस्टेट थी, वो उनके अंदर एम्पैथी नहीं थी. किसी के लिए एक एक किसी के लिए भावना होना, पोलाइटनेस होना, वो नहीं थी. मतलब इट वाज अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट ना, किसी को नीचा दिखाते हुए. लेट देम ईट केक. तो ये मोनार्की की या फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट की बहुत छोटी सोच न वे दिखाता है. ओके, किसने बोला था लेट देम ईट केक? एंड देम किसको रेफर कर रहे हैं? राइट, राइट. What was the primary political system in pre-revolutionary France? A constitutional monarchy, republic, absolute monarchy, democracy. Right. Right. Absolute monarchy. King was the single ruler with unlimited power, no effective checks and balances, complete. डिवाइन राइट्स के अगेंस्ट में दूसरे राइट्स की बात करी थी, वो कौन से राइट्स थे? और किसने करी थी बात? जॉन लॉक. राइट. एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओवरव्यू. ओके, फाइन. मूविंग ऑन. Explain the estate system in pre-revolutionary France and how it contributed to social inequality. ये आप मुझे, मतलब we'll go through the model answer, बट आपको इसको पढ़ के क्या समझ में आता है, आप मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो नोट फॉर्म में. राइट आंसर. $97. Right, so that answers your second part as well, कि how it contributed to social inequality. Right,
कि वो नंबर में ज्यादा थे थर्ड एस्टेट, लेकिन उनके पास लैंड बहुत कम था, और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी बट उनके पास लैंड बहुत ज्यादा था. वेल डन, दैट वाज अ गुड आंसर. और बाकी लेट्स सी द मॉडल आंसर. या इट सेज द सेम थिंग कि प्रिविलेजेस थी इनके पास, टैक्स इनको देने की जरूरत नहीं थी, एग्जेम्प्टेड टैक्स, राइट. Own 10% of land and tax exempt own 30% of land, paid all taxes, limited rights, है ना. So you can expand this. The estate system created massive inequality. First two estates owned, यहाँ पे 40% of land लिखा हुआ है, while I have told you 60% of land. I'll check once more whether this is correct or what I have told you is correct. Okay, then I'll let you know. But for now, remember 60%. But मैं एक बार फिर check कर लूँगी. But paid no taxes. Third estate bore entire tax burden despite economic hardship. उनके पास भी प्रॉब्लम्स थी थर्ड एस्टेट के बाद, उसके बावजूद उनके ऊपर ही सारा टैक्स बर्डन था. एंड वोटिंग बाय स्टेट रादर देन पॉपुलेशन गेव माइनॉरिटी कंट्रोल ओवर मेजॉरिटी. ठीक है, माइनॉरिटी कौन थी? फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट थी. माइनॉरिटी मेजॉरिटी में थे, क्योंकि ये तो 97% थे तो ये मेजॉरिटी में थे. लेकिन ये लाइन ये बोल रही है कि जो वोटिंग राइट्स थे वो एस्टेट के बेसिस पे थे, कि फर्स्ट एस्टेट के पास एक वोटिंग राइट, सेकंड एस्टेट के पास एक, और थर्ड एस्टेट के पास एक, जिसकी वजह से माइनॉरिटी के पास ज्यादा पावर आती थी या कंट्रोल आता था रादर देन मेजॉरिटी. ठीक है, इट मींस दैट. Then describe the role of Enlightenment ideas in inspiring the French Revolution. First, you have to brief about Enlightenment. एक सेंटेंस में, जो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है. Right? राइट. एंड कौन कौन से थिंकर्स थे? राइट. तो बेसिकली एनलाइटनमेंट का मतलब रीजन, साइंस एंड इंडिविजुअलिज्म. अगर आपको 3 वर्ड्स में सम अप करना हो, दे फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स. ओके, एंड व्हाट यू सेड इज आल्सो करेक्ट, राइट. डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज. जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी, तो वही आइडियाज फिर अल्टीमेटली हमने अचीव करने की कोशिश करी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के द्वारा भी, राइट. दैट्स हाउ दे इंस्पायर्ड. एंड इसमें भी वही है. रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी की बात करते हैं. रूसो ने पॉपुलर सॉवरेंटी वर्ड भी दिया था, डू रिमेंबर दिस. वॉल्टेयर रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं. मोंटेस्क सेपरेशन ऑफ पावर्स. एनलाइटनमेंट चैलेंज डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स. Middle class learned about liberty, equality, fraternity. These ideas provided intellectual framework for demanding constitutional government and influence declaration of rights. Okay. Then what was the significance of the storming of the Bastille in the French Revolution? If you have to write it in one line. Right. And after this only, the French king agreed to Constitution of National Assembly, right? So it had a major role in that sense. Storming occurred on July 14, 1789. Bastille symbolized royal tyranny. मतलब Bastille जो था, that was a symbol of royal tyranny. मतलब कि वही रॉयल पावर का सिंबल था, रॉयल किंग जो लोगों के ऊपर दबाव डालता था उसका सिंबल था. सो रेवोल्यूशनरी सॉट वेपन्स.
क्योंकि ऑब्वियसली एक र्यूमर फैला हुआ था कि हम पे अटैक हो जाएगा, आर्मी वुड ओपन फायर ऑन पीपल, सो दे थॉट वील कलेक्ट ऑल द आर्म्स फ्रॉम द बैस्टर्स प्रिजन, कि हम पे कोई अटैक ही ना हो सके. इवेंट मार्क ट्रांजिशन फ्रॉम पीसफुल प्रोटेस्ट. अब तक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी, लेकिन अब ये वायलेंट रेवोल्यूशन था. डेमोन्स्ट्रेटेड कलेक्टिव पावर ऑफ कॉमन पीपल, है ना, कि कॉमन पीपल जब एकजुट हो जाए तो वो क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसका भी एक सिंबल था. फर्स्ट मेजर विक्ट्री अगेंस्ट मॉनर्की. You don't need to write it, you will get this PDF. The important thing is you go through these questions, model answers के थ्रू भी जाओ और अपने आंसर्स फिर खुद फ्रेम करो. If you want good marks or extra marks, maybe full marks, then you have to, जैसे ये पॉइंट है, peaceful protest से it was a transition to violent revolution. If you write these kind of words in your answers, it would obviously have an impact. Okay. Then explain the economic factors that contributed to the outbreak of the French Revolution. Yeah, so king thought कि taxes increase किए जाएं, पर people protested कि नहीं. So you can write it in 3 subheadings. Financial crisis थे, enormous debt from American Revolution, costly wars with Britain, royal court extravagance, failed financial reforms. These are just key points. इसको expand करके आप लिख सकते हो, right? Then एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुए थे, उस टाइम पे पुअर हार्वेस्ट रही थी, ब्रेड प्राइसेस जिसकी वजह से इंक्रीज कर गए थे, फूड शॉर्टेजेस थी, फ्यूडल ड्यूज बर्डन पेजेंट्स, ठीक है, और टिलीज और टेथीज करके भी टैक्सेस थे. टिथीज जाता था 1/10 टू द चर्च एंड टेलीज था डायरेक्ट टैक्स. एंड सिमिलरली टैक्स इनइक्वालिटी, थर्ड एस्टेट पेड मोस्ट टैक्सेस, प्रिविलेज एस्टेट्स एग्जेम्प्ट, प्रिविलेज एस्टेट्स एग्जेम्प्टेड थी टैक्स पे करने से. मिडिल क्लास की इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन थी इस वजह से. सिस्टम इनहेरेंटली अनफेयर था, मतलब बेसिकली सिस्टम पूरी तरीके से अगेंस्ट था थर्ड एस्टेट के. What was the significance of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? You can begin it with the year or date जब ये हुआ. अगस्त को पहले तो ये आया था. Mention the year. I can't hear you. What? What? Yeah, now I can hear you. And yeah, then brotherhood was ensured. Okay. And इसमें adoption August 26, 1789 by National Assembly. Universal rights, rights for all. Later on ये जो rights थे, these were also adopted by various other countries in their constitution, fundamental rights के तौर पे. तो ये जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, सॉरी डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, इसका एक यूनिवर्सल इफेक्ट रहा. ठीक है. की प्रिंसिपल्स थे लिबर्टी, इक्वलिटी, सॉवरेंटी, लॉ, या फ्रेटर्निटी एज वी टॉक, लेगेसी, इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड यूएन डिक्लेरेशन में भी इसका रोल रहा. दिस प्रॉब्ली नॉट इन योर बुक, बट यस, एज एन एड ऑन. Document ended absolute monarchy and feudalism, established natural rights including liberty, property, security, marked foundation of modern human rights principles. Brainstorming questions, critically think and all. So
Compare French Revolution with historical events. This how might French history have been different if King Louis XVI had successfully implemented financial reforms before the revolution? Yeah, good. Right. Well done. I didn't. Yeah, go on. Yeah, that's good. Yeah, very good. I did not expect this answer from you. Great. Yes, a good answer. Let's see what do they say. Political outcomes, gradual constitutional monarchy होती, negotiated power sharing, क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं होता, रेवोल्यूशन के थ्रू हम अपनी डिमांड्स नहीं लेते, आराम से लेते. रिटेन्ड जो रॉयल पावर थी वो एज इट इज रहती, उनको हटाते नहीं, उनको एग्जीक्यूट नहीं करते. रिटेन्ड रॉयल लेजिटिमेसी. सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एज यू सेड, प्रोटेस्ट नहीं होती, वायलेंस नहीं होता. रिड्यूस क्लास एंटागनिज्म. एंटागनिज्म मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट थी उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो कम होते, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा था वो नहीं होता. पार्शियल नोबल प्रिविलेज रिटेंशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल. And then global impact, different revolutionary timings, alternative democratic models, reduced European. यूरोप में जो इंस्टेबिलिटी थी वो नहीं होती. नेपोल इन 10th क्लास यू विल रीड अबाउट नेपोलियन, सो इसको अभी हम छोड़, मतलब यहाँ आपने लास्ट में तो थोड़ा सा पढ़ा ही था. वो भी नहीं होता कि इन फ्यूचर वो अपनी आर्मीज और फ्रेंच कंट्रीज में, सॉरी यूरोपियन किंगडम्स में लेके जाते. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अमेरिकन, दिस यू वी हैवंट डन अमेरिकन रेवोल्यूशन, सो हम बस इनका आंसर देख लेते हैं. colonial grievances, taxation without representation, class inequality. वहां पे कॉलोनियल ग्रीवेंसेस थी क्योंकि ब्रिटेन रूल कर रहा था अमेरिका पे, लेकिन फ्रांस पे कोई और कंट्री रूल नहीं कर रही थी. राइट, सो ये एक डिफरेंस, वहां पे कॉलोनियल ग्रीवेंस थी. जो कॉलोनियल कौन थे, ब्रिटिश, उनके प्रति गुस्सा था. यहाँ पे वो नहीं था, यहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी थी, यहाँ पे किंग के प्रति गुस्सा था. मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल पावर, इंटरनल सिविल कॉन्फ्लिक्ट. ये तो किंग इनके अपने ही थे, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, वो एक्सटर्नल पावर ब्रिटेन के खिलाफ था. स्टेबल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशल कंटिन्यूटी, पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी, टेरर. मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उनके बहुत सारे स्टेजेस रहे, अल्टीमेटली दैट लेड टू डेमोक्रेसी. बट हियर वो फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबल था, जल्दी मिल गया था. देन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन. इनको आज़ादी मिली ब्रिटेन से, और इनके पास आज़ादी ऑलरेडी थी बिकॉज दे वर बीइंग रूल्ड बाय अ फ्रेंच किंग ओनली, लेकिन राइट्स ऑफ मैन इन्होंने डिक्लेयर करे थे. Both revolutions were influenced by Enlightenment ideas and challenged traditional authority. However, American Revolution was more limited in scope, while French Revolution attempted complete social transformation. How did geography and communication technology of the 18th century influence the spread and development of revolutionary ideas in France? We should see the answer इस case में. Dense urban areas facilitated idea spread, rural isolation limited information flow. क्योंकि रूरल लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे तो उनके पास इंफॉर्मेशन जल्दी से नहीं पहुंच पाती थी. नेचुरल बाउंड्रीज अफेक्टेड मूवमेंट, रीजनल इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्रिएटेड वेरीड सपोर्ट. रीजनली भी बहुत ज्यादा डिफरेंस थे, तो हर चीज हर किसी के पास नहीं उस तरीके से पहुंच पाती थी. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेटर ऑन जब प्रिंटिंग आई तो आप अपनी बात और जल्दी पहुंचाने लगे थ्रू प्रिंटिंग योर थिंग्स, ईदर ऑन न्यूज़पेपर और थ्रू पैम्फलेट्स. न्यूज़पेपर स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज, पब्लिक रीडिंग्स रीच इलिटरेट मासेस, सलोन्स प्रोवाइडेड डिस्कशन स्पेसेस. अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो आप कार्टून के थ्रू, पोइट्री के थ्रू या डांस के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू भी उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते थे. लिमिटेशन था, एक स्लो ट्रैवल स्पीड्स, डिलेड न्यूज, कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएटेड लोकल वेरिएशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल रिमेन डिफिकल्ट, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी वेरीड बाय डिस्टेंस. जगह जगह पे इंफॉर्मेशन किसी के पास कुछ और पहुंच रही है, किसी के पास कुछ और. बट या, evaluate the role of women in the French Revolution. Were they revolutionary participants or marginalized observers? ये बस बता दो कि विमेन जो थी वो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेंट्स थी या दूर बैठे देख रही थी, मार्जिनलाइज ऑब्जर्वर्स थी. राइट, स्पेशली वी गेट टू नो दिस फ्रॉम, वेरी गुड, या.
Active participation, women led march to Versailles as well. They formed political clubs, protested food shortages, Red Crisis जो ये थे. Olympe they go, I don't know about this, we haven't studied this. Olympe they Gorges wrote Declaration of Rights of Women and Citizen. Okay, this we have learned something new. कि हमने Declaration of Man and Citizens पढ़ा था, यहाँ पे Declaration of Women and Citizens was written by Olympe de Gorges. Okay. Then support roles served as battlefield nurses. जी Right. And are not considered. they were passive citizens, not active citizens. They did not have voting rights, right? Then they also no, but symbolize अगर हम Declaration of Rights of Man and Citizen line से हमें, और वो भी उस टाइम पे जब women के पास, आज हम पढ़ेंगे man तो we can still say man/women, but when we are reading it that time जब women के पास voting rights भी नहीं है, so first thought तो यही है ना, these rights are meant for men not for women, and that was so as well, क्योंकि उनको voting rights तो तब भी नहीं दिए गए थे, बहुत सारी limitations थी. इनफैक्ट जो सैन क्लूटोस भी था उसमें भी हमने पढ़ा था women को वो चीजें नहीं पहनने दी गई थी. We saw in the picture कि women was also wearing such a cloth, but what was written was कि women were not allowed to wear such things, है ना? तो उनके पास उतने rights नहीं थे. Then they also served as battlefield nurses. Some fought disguised as men. कुछ अपनी वेशभूषा को चेंज करके एक आदमी की तरह बन के भी उन्होंने लड़ाई करी. No voting rights granted, women clubs banned, gender roles reinforced. Women were active participants whose revolutionary gains were limited. उनको revolution से कम gain हुआ. By persistent gender inequality, economic activism was accepted, but political rights remained denied. उनको 1848 में ही, 1946 में जाके voting rights मिले थे. 1848 में क्या हुआ था? Napoleon was what? और टेम्परेरी कब अबॉलिश हुआ था? जो आप अपने एग्जाम में गलत करके आए थे, नाउ यू विल रिमेंबर फॉर एवर, राइट. और नेपोलियन कब एग्जीक्यूट हुए थे? नो, 1815, 1815. Yeah, for a brief period, but he brought lot of changes during that period, right? Lot of violent changes as well. How did the French Revolution transform the relationship between church and state? What were the long-term consequences? पहले चर्च का बहुत ज्यादा रोल था पॉलिटिक्स में, अब कम हो गया. पहले चर्च के पास टैक्सेस जाते थे, बट अब नहीं जाएंगे उस तरीके से. चर्च एंड स्टेट सेपरेट. बाकी लेट्स सी. नेशनलाइजेशन, चर्च प्रॉपर्टी सीज कर ली गई थी. सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट क्लर्गी टू स्टेट. चर्च और स्टेट अब सेपरेट हो गई, पहले एक थी अब अलग है. स्टेट हैज मोर पावर, चर्च इज अंडर द स्टेट. Dechristianization, religious holidays replaced, cult of supreme, religious holidays replaced, cult of supreme being introduced. Then Concordat, Napoleon's 1801 agreement restored some church authority. Napoleon ने 1801 में चर्च की कुछ अथॉरिटी को रिस्टोर कर दिया था. एंड मॉडर्न सेक्युलरिज्म, फ्रेंच वर्ड ये Lassite principle has roots in revolutionary separation. Revolution permanently weaken, revolution ने permanently church को weak तो कर दिया था, church की political power को, and established separation principle. As we said, church और state differently देखे जाएंगे. Modern French secularism traces back to revolutionary policies. This we have done. Then Olympiad question overview. Okay, these are again MCQs. The economic policies of which pre-revolutionary finance minister attempted to impose taxes on the privileged classes, leading to the Assembly of Notables in 1787? This we haven't done, right? So we can see Charles de Calonne. Calonne served as Controller General of Finances, found massive deficit of 112 million livres, reform package, proposed land tax on privileged orders, provincial assemblies, assembly failure.
Nobles refused tax privileges, surrender, leading to his dismissal. His failure forced calling of a States General, precipitating the revolution. Precipitating मतलब उसको और बढ़ाना, right? Wait a second. Okay, but we can remember this कि वो कौन से लीडर थे जिन्होंने कोशिश करी थी टैक्स को नोबल्स पे इम्पोज करने के लिए. अभी तक हमने देखा कि टैक्स किस पे इम्पोज हो रहा था, द थर्ड एस्टेट, बट ही वाज द मिनिस्टर चार्ल्स दे कलोन हु अटेम्प्टेड टू इम्पोज टैक्स ऑन नोबिलिटी. ऑब्वियसली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, दे डिड नॉट अग्री, बट स्टिल. Then which of the following events occurred in the correct chronological order? This we have done. पहले क्या हुआ था? D. Right, let's, no, you're saying D, right? Let's see. It's C. Formation of National Assembly, tennis court oath. Formation of National Assembly की 5th May को कॉल करी गई थी, right? Estate General की मीटिंग थी, yeah, you are correct on that. June 17, third estate declares itself. Wait a second. Tennis court oath, pledge taken when locked out. Tennis court oath, June 20. Wait a second. Let me just check once. No, it's 17 June 1789 only, जो फर्स्ट नेशनल असेंबली बनी थी, राइट? लेकिन उसको मान्यता 3 दिन पहले बनी, राइट? लेकिन किंग मान्यता नहीं दे रहे थे. स्टॉर्मिंग ऑफ सॉरी टेनिस कोर्ट ओथ, देन स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल्स के बाद, नहीं एक सेकेंड, हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, देन टेनिस कोर्ट ओथ, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल्स, and then execution of Louis. Storming of Bastilles is 14 July 1789. Tennis court oath is 20th June, right? And execution is 1793. Formation of National Assembly, it says 17 June 1789. So based on that, 17 June. So yeah, based on that formation, let me just write it over here. Wait a second. This was 14th of July. Wait a second. इट वाज द नेशनल असेंबली, जो थर्ड एस्टेट थी उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था 17 जून को कि हम नेशनल असेंबली हैं. तो ये उस बेसिस पे दे आर सेइंग दैट, राइट? ऑल्दो एट दी, और तभी दे मेट एट टेनिस कोर्ट, ओके? Because it says that only. I don't think so it's mentioned in book though. Yeah, it is not mentioned in the book, but online we get to know that only. So ऑफिशियली या अप्रूव्ड उसके बाद हुई थी, या. So we can remember this order. यही डेट 17 जून 1789, देन 20th जून टेनिस कोर्ट ओथ. और ये भी कंफर्म तो नहीं हुआ था ना, क्योंकि इसी इवेंट को सबसे बड़ा माना जाता है और वायलेंट इवेंट, जिसके बाद द किंग हैड टू अग्री टू अदर थिंग्स. चाहे वो पीछे अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट दीज आर नॉट गेटिंग अप्रूवल बाय द किंग. इट वाज ओनली आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल्स दैट ऑल दीज थिंग्स वर अप्रूव्ड, राइट? तो इसमें लिखा भी हुआ है वैसे.
Which social group within the third estate was most instrumental in articulating revolutionary political ideas and leading the early stages of the revolution? There was one, called bourgeois, right? Yeah. San Clutus कौन थे? Yeah, who wore red striped pants, right? Right, right. They had a social position in bourgeois की क्या थी? Commercial and professional middle class with wealth but lacking political power and social status. Education level, well educated थे, familiar with enlightenment principles, key leaders थे. This we have Mirabeau we have studied. Then Mirabeau we have studied, and the other one also Abbesius हमने short form पढ़ी है, इन्होंने full दिया हुआ है. We have done that. Abbesius, right? Championed bourgeois ideals, political control, controlled National Assembly, wrote Declaration of Rights, wanted constitutional monarchy. This we haven't done. Collected before the Estates General Meeting, revealed which common grievance across all the three states. Desire to abolish the this we haven't done, so let's learn from here only. Complaints about the tax system. Okay. The Kahirs, I don't know how it's pronounced, they Dolienses collected before the estate general meeting revealed which common grievance, कि मतलब ये जो कलेक्ट किया था इसके बेसिस पे एक कॉमन ग्रीवेंस आई थी तीनों एस्टेट से, वो क्या थी, राइट? एंड इट वाज कंप्लेंट्स अबाउट द टैक्स सिस्टम. तीनों एस्टेट्स का ही कहना था कि टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं. ओके, फर्स्ट एस्टेट क्लर्गी कंप्लेंट about declining influence but agreed tax reform needed. Nobles worried about privileges lost, but many accepted tax reform necessary, while the third estate demanded end to unfair tax burden and privileged exemptions, right? Ye first or second favored tax system, while the third did not, right? And which Enlightenment philosopher's concept of general will most directly influenced the revolutionary concept of पॉपुलर सॉवरेंटी? जनरल विल आपने चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन यही दूसरे वर्ड्स में मेंशन्ड है. एंड देन पॉपुलर सॉवरेंटी वी हैव मेंशन्ड. नो, आई एम सेइंग इनमें से कौन सा किस थिंकर ने बात करी थी? जॉन लॉक ने किसकी बात करी थी? Natural rights. Do we see mention of natural rights over here, or general will and popular sovereignty? जनरल विल का मतलब है सबकी, जनरल विल के सबकी सहसम्मति से काम होना. तो वो क्या हो? एग्जैक्टली, या. सो आई डिड नॉट मेंशन जनरल विल, बट आप डिटेक्ट कर सकते हो पॉपुलर सॉवरेंटी से भी, बिकॉज दिस वी हैव मेंशन. एंड चाहे जनरल विल बोलो चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग सिमिलर ओनली. तो ये जीन जैक रूसो. बाकी लेट्स जस्ट चेक. जीन जैक रूसो, from Rousseau's 1762 work, The Social Contract. General will, collective interest of citizens, not individual desires. Popular sovereignty, government legitimacy comes from popular consent. Revolutionary impact इसका रहा. Law is expression of general will. Law क्या होना चाहिए? जो सब कहें वो law होना चाहिए, right? Then Robespierre particularly embraced Rousseau's ideas, using general will to justify radical actions. And the dates. The dates are very important. I think we are done. Yeah, we are done with this. Koi doubt in this? I think we have very less time to begin the new chapter. Should we begin the new chapter right now or next class से? Because हम बस बहुत basic. Okay, wait a second. So, have you done this chapter? Yeah, as per the schedule given to you. Okay. So in the next class, we will do this chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution.
Okay, so socialism was a new, not a new but a different ideology, and it is against capitalism. कैपिटलिज्म में हम किसकी बात करते हैं कि किसके पास रिसोर्सेज होते हैं? कैपिटलिस्ट के पास. कैपिटलिस्ट का, कैपिटल का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट कैपिटल मींस? हाँ, कंट्री का मनी नहीं, कैपिटल का मतलब होता है देयर इज अ बिजनेस, राइट? बिजनेस में आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल. व्हेन यू पुट योर मनी इन अ बिजनेस, so that is known as capital. Okay, capitalism क्या हो गया? It becomes an ideology. Those who favor this ideology, ये concept, वो capitalism हो गया. ऐसे ही socialism होता है. और कैपिटलिज्म में किसके पास रिसोर्सेज या पैसा होता है? इंडिविजुअल के पास. ओके, जिसका पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, राइट? बट सोशलिज्म, सोशल वर्ड से हमें याद रखना है, सोशल मतलब कम्युनिटी, है ना? सोशलिज्म किसकी बात करता है? कि सबका होना चाहिए, राइट? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेल, एंड जो रिसोर्सेज है इट बिलोंग्स टू एवरीवन, नॉट टू वन और सिंगल पर्सन. चाहे सारा पैसा उसका है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. सोशलिज्म का कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस लैंड, दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू पार्थ. ओके, दिस बिलोंग्स टू यू. You want to be an engineer when you grow up, right? So it's a computer shop. Since you want to become an engineer, we are doing something with computers. Okay, computer parts के साथ, chips के साथ. अब it's not just you working over here, you have employees working for you, right? You have employees working for you, you are not alone working over here. And computer का कुछ पार्ट हो सकता है आप बना रहे हो, कुछ पार्ट आप बाहर से ले रहे हो, कुछ पार्ट कोई और बना रहा हो, like that. So शॉप आपकी है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, लेकिन क्या आप अकेले इसमें प्रॉफिट बना लोगे? और यू वुड नीड मोर पीपल, नीड मोर पीपल. सो सोशलिस्ट का यही कहना है कि कैपिटलिस्ट की एक प्रॉब्लम होती है. व्हेन पार्थ ओपन दिस बिजनेस, पार्थ वुड ओनली थिंक अबाउट पर्सनल गेन, कि मैं, मेरा पैसा लगा है तो मुझे प्रॉफिट हो. पार्थ वुड नॉट थिंक अबाउट कि मुझे प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें बाकी जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनका भी योगदान है. दे आर द वन हु आर गिविंग देयर लेबर, राइट? तो उनकी वेलफेयर का कौन सोचेगा? सोशलिस्ट यही बात करता है कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचते हैं, राइट? अपना प्रॉफिट, मेरा पैसा लगा है तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए. दे डू नॉट थिंक अबाउट कि वो जो फैक्ट्री चल रही है वो कुछ लेबर की वजह से चल रही है, लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के वेलफेयर का क्या होगा? सोशलिज्म उसी को काउंटर करता है कि सबकी है, सबको बेनिफिट होना चाहिए. जब प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, इफ इट्स पार्ट्स मनी, तो पार्ट उसमें से 55% ले सकता है, लेकिन 45% तो पार्ट को बाकियों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना. दैट इज व्हाट सोशलिज्म फोकसेस ऑन, राइट? हैव यू रेड दिस चैप्टर बिफोर? नो. तो आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ के आओगे. कैन यू डू दैट? मे बी हाफ ओनली. अगर ना समझ में आए देन यू कैन स्टॉप देयर एंड देन. बट इससे आपको समझ में तो आ गया. वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म यूरोप में, और रशियन रेवोल्यूशन कैसे सोशलिज्म की ओर फोकस करेगा. ओके, बिकॉज इफ वी स्टार्ट इवन देयर इज नो पॉइंट ज्यादा, बट दिस इज द क्रक्स. इट्स ऑल अबाउट सोशलिज्म काउंटरिंग कैपिटलिज्म एंड कैसे चीजें आगे वर्क ऑन करेंगी. ऑलराइट, सो नाउ वी शैल वाइंड अप. ओके, एंड जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस किए हैं, यू आंसर्ड इट ब्रिलियंटली. आई वांट यू टू डू इट अगेन. चाहे एक दो बार और कर लो, इट वुड हेल्प यू. ठीक है, ओलंपियाड के करोगे, इट वुड हेल्प यू टू रिमेन एक स्टेप आगे. बट बाकी सारे तो करने ही है. ओलंपियाड के करोगे सो वेल ग्रेट, बट अदरवाइज ऊपर के सारे तो करने ही है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, राइट? So in the next class, we'll begin with socialism in Europe and the Russian Revolution. All right. Thank you.